वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 9 इंटरनेशनल बिजनेस के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने एफडीआई के बारे में पढ़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में पढ़ा। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स है जिससे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, आपके माइंड में चीजें रहनी चाहिए। ठीक है, क्या है वो? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड ऑन January 1995 deals with the trade rules between nation, forum for government to negotiate trade agreement. WTO's current work comes from 1986 to 94 negotiation called Uruguay round. Earlier negotiation under GATT, गाटा भी बोलते हैं इसे, General Agreement on Tariff and Trade. WTO members expanded to 164. It represents over 98% of international trade. Usually meets at least once every 2 years. Delegates meets regularly in Geneva. Highest body is the Ministerial Conference. DG is responsible for supervising administrative function of WTO. DG is appointed by WTO members for a term of 4 years. General Council is WTO decision-making body in Geneva, meeting regularly to carry out the function of WTO. WTO TPRM, Trade Policy Review Mechanism, is a part of WTO Trade Policy Review Mechanism that aims to achieving greater transparency. General Council convenes as the dispute settlement body. Steps in dispute settlement is 4 स्टेप होते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के, याद रखिएगा। अच्छे से याद रखिएगा, इसे कई बार डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट में कितने स्टेप्स हैं। दैट इज कंसल्टेशन, पैनल, अपील एंड रिजल्ट। कंसल्टेशन, पैनल, अपील एंड रिजल्ट। कंसल्टेशन, पैनल, अपील एंड रिजल्ट। MFN, most favored nations principle, grant some country a special favor, lower custom duty rate for one of their products. Major agreements of WTO, 2 categories of subsidies are prohibited: export subsidies, local content subsidies. TRIPS set down minimum standards for many forms of IP, intellectual property. Agreement on agriculture in WTO terminology. Subsidies in general are identified by box in color. 3 होता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं भैया कितने तरह के बॉक्स होते हैं। तो ग्रीन, एम्बर एंड रेड। ग्रीन मतलब परमिटेड, एम्बर मतलब स्लो डाउन, दैट इज बी रिड्यूस्ड, रेड इज फॉरबिडन। ग्रीन बॉक्स एग्रीकल्चर, R&D, training program, flood, drought relief to farmer, etc. Subsidies that do not disrupt trade balance or cause minimum damage to trade balance. WTO limit nothing. Blue box क्या है? Amber type subsidies that aim to limit production. Subsidies that don't increase with production. WTO limit nothing. Amber box जहाँ पे reduce करने की बात हो रही थी वहां पे यानी धीरे स्लो करने की सब्सिडीज की बात हो रही है। दैट इज क्या है, इसके अंदर में क्या आता है? सब्सिडीज दैट डिस्टर्ब ट्रेड बैलेंस, लाइक सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर, सीड्स, पावर एंड इरिगेशन. By this country product become cheaper than other in the international market. WTO limit D, minimum limits develop 50%, developing 10%, least developed exempted. मतलब जो एम्बर बॉक्स के अंदर में जो है, इसमें भी जो लिस्ट डेवलप यानी पुअर सबसे गरीब देश हैं, इसके अंदर लागू नहीं होता है। जो डेवलप कंट्री है 50%, डेवलपिंग है 10%। अगला पॉइंट है WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, दैट इज SSM, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। SSM इज अ प्रोटेक्शन मेजर अलाउड डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक कंटिजेंसी रिस्ट्रिक्शन, दैट इज imposition of tariff. At Doha Ministerial Conference, the developing countries were given a concession to adopt a special safeguard mechanism, that is SSM.
इंडिया WTO member since 1 जनवरी 1995 and GATA since 8 जुलाई 1948. Bali package, that is 9th ministerial conference agreement in Bali, Indonesia on 3-7 December 2013. Conclude landmark trade facilitation agreement TFA following its ratification by 2/3 of WTO members. WTO फ्लैगशिप पब्लिकेशन क्या क्या है? एनुअल रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। याद रखिएगा कि WTO का फ्लैगशिप पब्लिकेशन क्या क्या है, ये भी कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। दैट इज एनुअल रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अलग अलग इसके थ्योरी है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी, दैट इज मर्सेंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हिक्सकर-ओहलिन थ्योरी। मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज क्या है? कंट्री सिमिलरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्ट्रेटजी राइवलरी, पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब एक एक करके इस चीज को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो मर्केंटिलिज्म की बात करें तो ये क्या होता है? सबसे पहले इसे जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने इसे दिया। मर्केंटिलिज्म जो है वो कहता क्या है? कंट्री वेल्थ इज डिटरमाइंड बाय इट्स गोल्ड एंड सिल्वर होल्डिंग। एक देश के पास कितना सोना चांदी है उससे कंट्री के वेल्थ को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। किसमें कह रहा है? मर्केंटिलिज्म में जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने इसे दिया है। एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने दिया वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में सबसे पहले इसका जिक्र किया। इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज में बोला फोकस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स मोर इफिशिएंटली देन अदर नेशन। यानी कौन एक देश जो है किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बेहतर बना रहा है उसे ही जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, दैट इज अंडर एब्सोल्यूट एडवांटेज, और उसे एडवांटेज भी इस बात की होती है फोकस ऑन द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स मोर एफिशिएंटली देन अनदर नेशन। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बाय डेविड रिकार्डो। if country A has the absolute advantage in the production of both products, specialization and trade could still occur between two countries. कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दिया? डेविड रिकार्डो ने। थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड बाय जेस मिल, इसमें क्या है? टू एक्सप्लेन द एक्चुअल डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गॉटफ्रीड हेबरलर ने दिया। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी वेस्ले डब्ल्यू लियोन्टिफ ने इससे दिया। कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी स्टीफन लिंडर ने दिया। कई बार नाम पूछ ले जाते हैं आपसे, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी किसने दिया? तो 1961 में स्टीफन लिंडर ने दिया। कंज्यूमर इन कंट्रीज दैट आर इन द सेम और सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वुड हैव सिमिलर प्रेफरेंसेस। यानी भैया अगर हम और आप दोनों अगर एक ही पायदान पे खड़े हैं तो हमारी आपकी जरूरतें भी एक जैसी ही तो होगी। ग्लोबल स्ट्रेटजिक राइवलरी थ्योरी in 1980s by Paul Krugman and Kelvin Lancaster focus on MNCs and their efforts to gain a competitive advantage against other global firms in their industry. क्या है? फिर से याद रखिएगा इसे, ग्लोबल स्ट्रेटजिक राइवलरी थ्योरी 1980s में पॉल क्रूगमैन एंड केल्विन लैंकेस्टर ने इस चीज को दिया था। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माइकल पोर्टर के द्वारा 1990 में दिया गया। 4 इसके डिटरमिनेंट है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के। लोकल मार्केट रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज, लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन, लोकल सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज, लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखिएगा नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माइकल पोर्टर ने 1990s में दिया। इसके 4 डिटरमिनेंट्स हैं, लोकल मार्केट रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज, लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन, लोकल सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज, लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। IMF के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। आप जुड़े रहे हमारे साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दें।